नमस्ते। अब हम यूनिट 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के पार्ट 3 की रीडिंग करेंगे। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. I stayed awake all night. By morning, I knew what I had to do. I drove into Bridport, just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. House number 12 turned out to be nothing but a burned out cell, the roof gaping, the windows boarded up. मैंने चिट्ठी को फिर से मोड़ा और सावधानी से वापस लिफाफे में रख दिया। मैं पूरी रात जागता रहा। सुबह तक मुझे पता चल गया था कि मुझे क्या करना है। मैं ब्रीडपोर्ट गया, जो बस कुछ मील दूर था। मैंने एक लड़के से पूछा, जो अपने कुत्ते को घुमा रहा था, कि कॉपर बीचेस कहाँ है। घर नंबर 12। एक जली हुई इमारत के अलावा कुछ नहीं था। छत टूटी हुई थी, खिड़कियां बंद थी। I knocked at the house next door and I asked if anyone knew the whereabouts of Mrs. Macpherson. Oh, yes, said the old man in his slippers. He knew her well. A lovely old lady, he told me, a bit muddle headed, but at her age she was entitled to be. Wasn't she 101-year-old? She had been in the house when it caught fire. मैंने बगल वाले घर का दरवाज़ा खटखटाया और पूछा कि क्या कोई मैसेज मैकफर्सन के बारे में जानता है। मिसेज मैकफर्सन के बारे में जानता है। हाँ, बूढ़े आदमी ने अपनी चप्पलों में कहा। वह उन्हें अच्छी तरह जानता था। एक प्यारी बूढ़ी औरत, उसने मुझे बताया, थोड़ी उलझन में रहती थी, लेकिन उसकी उम्र में उसे ऐसा होने का हक था, है ना। 101 साल की 101 साल की। जब घर में आग लगी तो वह घर में ही थी। No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. The fireman had got her out just in time. She was in a nursing home now, he told me. Burlington House on the Dorchester Road. Dorchester Road on the other side of town. यानी किसी को सच में नहीं पता था कि आग कैसे लगी, लेकिन यह मोमबत्तियों से लगी हो सकती है। वह बिजली के बजाय मोमबत्तियां इस्तेमाल करती थी, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि बिजली बहुत महंगी है। फायरमैन ने उसे ठीक समय पर बाहर निकाल लिया था। उसने मुझे बताया कि वह सब एक नर्सिंग होम में हैं, बर्लिंगटन हाउस, डोरचेस्टर रोड पर, शहर के दूसरी तरफ। ओके। I found Burlington House nursing home easily enough. There were paper chains up in the hallway, and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on top. I said I was a friend who came to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. यानी मुझे बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम आसानी से मिल गया। हॉलवे में कागज की चेन लगी हुई थी और कोने पे एक सजा क्रिसमस ट्री खड़ा था, जिसके ऊपर एक टेढ़ा मेढ़ा फरिश्ता लगा था। मैंने कहा कि मैं मिसेस मैकफर्सन से मिलने आया एक दोस्त हूँ, उन्हें क्रिसमस का तोहफा देने। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. She even offered me a mince pie. She walked me along the corridor. Mrs. Macpherson is not in with the others, she told me. मैं डाइनिंग रूम के अंदर देख सकता था, जहाँ सबने कागज की टोपी पहनी हुई थी और गाना गा रहे थे।
मैट्रन ने भी टोपी पहनी हुई थी और मुझे देखकर काफ़ी खुश लग रही थी। उसने मुझे मिन्स पाई भी ऑफ़र की। वह मुझे कॉरिडोर में ले गई। उसने मुझसे कहा, मिसेस मैकफर्सन दूसरों के साथ नहीं है। She is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. She has no family, you know, no one visits, so I am sure she will be only too pleased to see you. She took me into a conservatory with wicker chair and potted plants all around and left me. यानी वह आज थोड़ी कंफ्यूज्ड है, इसलिए हमने सोचा कि उनके लिए आराम करना सबसे अच्छा रहेगा। आप जानते हैं उनका कोई परिवार नहीं है, कोई उनसे मिलने नहीं आता, इसलिए मुझे यकीन है कि वह आपको देखकर बहुत खुश होंगी। वह मुझे विकर कुर्सियों और चारों ओर गमलों में लगे पौधों वाले एक कंजर्वेटरी में ले गई और मुझे वहीं छोड़ दिया। The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. She had silver white hair pinned into a wispy bun. She was gazing out at the garden. Hello, I said. She turned and looked up at the vacantly. Happy Christmas, Connie. I went on. I found this. I think it's yours. As I was speaking, her eyes never left my फेस। यानी बुढ़िया एक व्हील चेयर पर बैठी थी, उसके हाथ गोद में मुड़े हुए थे, उसके चांदी जैसे सफ़ेद बाल एक हल्के से बन में बंधे हुए थे। वह बगीचे की ओर देख रही थी। मैंने कहा, नमस्ते। वह मुड़ी और खाली नज़रों से मेरी तरफ देखा। मैंने आगे कहा, हैप्पी क्रिसमस कोनी। मुझे यह मिला, मुझे लगता है कि यह तुम्हारा है। जब मैं बोल रहा था उसकी आंखें मेरे चेहरे से हटी नहीं। I opened the tin box and gave it to her. That was the moment her eyes light up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening for a while. She said nothing but stroked the letter tenderly with her fingertips. मैंने टीन का डिब्बा खोला और उसे दे दिया। उसी पल उसकी आंखों में पहचान की चमक आई और उसका चेहरा अचानक खुशी से भर गया। मैंने डेस्क के बारे में बताया कि मुझे वह कैसे मिला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह सुन रही थी। थोड़ी देर तक उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी उंगलियों से उस चिट्ठी को प्यार से सहलाती रही। Suddenly she reached out and took my hand. Her eyes were filled with tears. You told me you would come home by Christmas, dearest, she said. And here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim dear, sit down. अचानक उसने हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। उसने कहा, तुमने मुझसे कहा था कि तुम क्रिसमस तक घर आ जाओगे प्यारे, और देखो तुम यहाँ हो। दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस तोहफा। और पास आओ प्यारे जिम, बैठ जाओ। I sat down beside her and she kissed my cheek. I read your letter so often, Jim, every day. I wanted to hear your voice in my head. It always made me feel you were with me, and now you are. Now you are back. You can read it to me yourself. मैं उसके बगल में बैठ गया और उसने मेरे गाल पर किस किया। मैंने तुम्हारा खत बहुत बार पढ़ा है जिम, हर दिन। मैं अपने मन में तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। इससे मुझे हमेशा लगता था कि तुम मेरे साथ हो, और अब तुम हो। अब जब तुम वापस आ गए हो तो तुम इसे मुझे खुद पढ़कर सुना सकते हो। Would you do that for me, Jim dear? I just want to hear your voice again. I would love that so much. And then perhaps we will have some tea. I have made you a nice Christmas cake, marzipan all around.
आई नो हाउ मच यू लव मर्जीपन। क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे प्यारे जिम? मैं बस तुम्हारी आवाज़ फिर से सुनना चाहती हूँ। मुझे यह बहुत अच्छा लगेगा और फिर शायद हम थोड़ी चाय पियेंगे। मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा क्रिसमस केक बनाया है। चारों तरफ मार्जिपन लगा है। मुझे पता है कि तुम्हें मार्जिपन कितना पसंद है। माइकल मोरपुरगो। ओके।